Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and enjoying best of your health. This is 8th class English, lesson number 28. And our today's topic is comprehension. You know that we have covered with paragraph number 3 and 4 solved exercise of comprehension, and now today we are going to talk about paragraph number 3 unsolved exercise. You have to open page 39, Punjab textbook board grammar. You will find paragraph number 3 on that page. Before going to start that paragraph, here are a few steps to solve comprehension passage. If you want to solve any comprehension paragraph or any type of passage, you have to follow these steps. And you know the meaning of comprehension? To understand. Clear? To get ability to use the words and techniques and sentences of given passage. Clear? First step is read passage carefully and underline difficult words. This is very important thing. Read passage carefully first of all. अगर समझ आ रहा है तो भी, अगर नहीं समझ आता then फिर भी just read carefully and try to understand. Underline difficult words, जो words आपको new लगते हैं. Consult these words from dictionary and write their meaning on them. Important point, use a dictionary and write down the meaning of difficult words on them. Third, read passage again and check your understanding level now. Clear? After writing difficult words and their meaning, you have to read passage again and hope that you can understand carefully. If you couldn't understand any sentence, relate it with its context. अगर sentence आपको समझ नहीं आया तो you have to relate it with its context. उसके आगे वाले या उससे पीछे वाले sentence के साथ उसको relate करें. Write all your understanding on a page. What do you understand? You have to write down on a page. उसको पूरे जो है ना, जो कुछ आपको समझ में आया उसको एक पेज पर लिखें. And make a gist in mind and write on paper. Clear? Make a summary of that paragraph and write down that summary on a paper. Read questions carefully and understand them. Clear? अब questions को गौर से पढ़ें and try to understand what the question is about. कि question में क्या पूछा जा रहा है. Clear? Answer the question with the help of that gist which you got from the passage. Clear? जवाब दें फिर क्वेश्चंस का विद द हेल्प ऑफ दैट जेस्ट, जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, जो आपने बुलेट्स बनाए हैं, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से. आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस एंड पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज. क्लियर? और एज यूज्ड इन द क्वेश्चन. क्लियर? क्वेश्चन का आंसर उसी सेंटेंस में दें, उसी टेंस में दें जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. डू प्रूफ रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस, आंसर केयरफुली. क्लियर? क्वेश्चन आंसर को ध्यान से, तवज्जो से उनकी प्रूफ रीडिंग करें एंड सॉल्व और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करें. नेक्स्ट, ओके, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 3 अनसॉल्व. फर्स्ट इज एजेंट्स, कारिंदे, अपने लोग. क्लियर? रेयर, नायाब. मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मुसव्वदे. क्लियर? नुस्खे. कंस्टेंटली, मुसलसल. वॉल्यूम्स, किताब. हैंडसम, पुरकशिश. प्रेजेंट, तोहफ़ा. बेग्ड, दरख्वास्त की. मीन्स, ज़राए. एंड गैदर्ड, जमा किया. क्लियर? These are difficult words and their meanings from that paragraph. Last one is painfully, मुश्किल से, and professional, पेशावर. Clear? Very good. Okay, now move towards the paragraph unsolved passage number 3. The Sultan sent agents to all parts of East to buy rare manuscripts
and to bring them back to Cordova. Clear? Now you have to read it and listen it carefully. We will translate it in a easy and we will translate that into Urdu to make you understand. Clear? कि द सुल्तान सेंट एजेंट्स, सुल्तान ने अपने बाशिंदे भेजे, टू आल पार्ट्स ऑफ ईस्ट, क्लियर, ईस्ट के तमाम हिस्सों में, टू बाय रेयर मैनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है, नायाब मुसव्वदे ख़रीदने के लिए, एंड टू ब्रिंग दैम बैक टू कॉर्डोवा, और उनको कॉर्डोवा शहर, ठीक है, काहिरा जो शहर है उसमें वापस लाने के लिए. क्लियर? हिज men were constantly searching the bookseller's shop at Cairo. Clear? His men, उसके जो लोग थे वो मुसलसल तलाश कर रहे थे बुक सेलर्स शॉप, किताब फरोशों की दुकानों पर, एट सायरो, काहिरा में, दमिश्क में, एंड बगदाद, और बगदाद में, फॉर रेयर वॉल्यूम्स फॉर हिज लाइब्रेरी. क्लियर? नायाब नुस्खे उसकी लाइब्रेरी के लिए. व्हेन द बुक कुड नॉट बी बाउट एट एनी प्राइस, और जब किताब किसी भी कीमत पर ना ख़रीदी जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी लाइब्रेरी या किसी बुक में वो किताब सिर्फ़ किसी जो है ना वो शॉप पर वो किताब सिर्फ़ एक ही हो, तो उस सूरत में उसके कारिंदे क्या करते थे? लुक एट दिस. ही वुड हैव इट कॉपीड, तो वो इसकी कॉपी करवा लेते थे. एंड सम टाइम व्हेन ही हर्ड ऑफ अ बुक विच वाज ओनली इन द ऑथर्स ब्रेन, और कभी जब वो किसी किताब के बारे में सुनता जो अभी ऑथर मुसन्निफ़ के दिमाग में होती, मतलब किसी मुसन्निफ़ के पास किताब का कोई आइडिया होता, ही वुड सेंड हिम अ हैंडसम प्रेजेंट, तो वो एक पुरकशिश तोहफ़ा जो है वो उसको भेजता मुसन्निफ़ को. एंड बेग्ड हिम टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कॉर्डोवा, और उससे दरख्वास्त करता कि वो पहली कॉपी, जब वो किताब लिखे तो सबसे पहली कॉपी वो उसके पास उसके शहर भेजे. बाय सच मीन्स, कुछ ज़राए से, ही गैदर्ड नो फ्यूअर दैन 400,000 बुक्स. क्लियर? कुछ ज़राए की मदद से इसने तकरीबन 4 लाख किताबें इकट्ठी की. एंड दिस एट अ टाइम व्हेन प्रिंटिंग वाज अननाउन, और सबसे अहम बात यह है कि ये उस वक़्त था जिस वक़्त प्रिंटिंग जो है वो मुतारिफ़ नहीं हुई थी. एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड, और हर कॉपी जो है वो बड़ी मुशक्क़त से जो है कॉपी की जाती थी. कॉपी मीन उसको जो है ना वो हाथ से लिखे हुए नुस्खे होते थे, तो हाथ से उसको लिखा जाता था. क्लियर? एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड इन द फाइन क्लियर हैंड ऑफ द प्रोफेशनल कॉपीइस्ट. क्लियर? उस दौर के पेशेवर लिखारी से, या पेशेवर जो है ख़त्तात होता था, उससे जो है उसको बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में लिखवाया जाता था. इतनी मुश्किल से जो है ना वो किताबें वो इकट्ठी करता था, और इतना वो किताबों का शौकीन था. क्लियर? वाई? क्योंकि उनको किताबों की कदर और उसकी अहमियत का इल्म था. इस वजह से हर कीमत पर वो किताब को ख़रीदने की या किताब को हासिल करने को तरजीह देता था. यू कैन अंडरस्टैंड कि 4 लाख किताबें, जिस वक्त प्रिंटिंग नहीं होती थी बल्कि किताबें हाथ से लिखी जाती थी, उसने अपने पास इकट्ठी की हुई थी. क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट द पैराग्राफ. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड. You have to listen it again and revise it again. Now, next step is question answer. These are questions and the answer of this paragraph. Question is, why did Sultan send agents to all parts of East? Clear? कि सुल्तान ने अपने कारिंदे क्यों जो है वो भेजे. The Sultan sent his agent to all part of East to find rare manuscripts for his library. Clear? सुल्तान ने अपने कारिंदे इस वजह से भेजे ताकि वो उसकी लाइब्रेरी के लिए
नायाब नुस्खे या नायाब मुसव्वदे ख़रीद सकें। क्लियर। Where and why they searched the book seller's shop। क्लियर, कि वो कहाँ और क्यों किताब फरोशों की दुकानों पर तलाश कर रहे थे। क्लियर। नाउ दिस इज, they searched the booksellers shops at Cairo, Damascus and Baghdad for rare volumes for his library। क्लियर, कि उन्होंने काहिरा में और दमिश्क में और बगदाद में किताब फरोशों की किताबों पर तलाश किया, नायाब मुसव्वदों को उसकी लाइब्रेरी के लिए। What would he do when any book was not be bought at any price। फिर वो क्या करता था जब कोई किताब किसी भी कीमत पर नहीं ख़रीदी जाती थी। The Sultan got the desired book copied when it was not be bought at any price। क्लियर, सुल्तान उसकी कॉपी करवा लेता था। क्लियर, मतलब उसको हाथ से लिखवा लेता था एक दफ़ा, और जब उसको वो किताब किसी कीमत पर भी हासिल ना होती। नेक्स्ट इज़, व्हाट वुड ही डू व्हेन द ऑथर हैड नॉट येट रिटन द बुक। अच्छा, वो उस वक्त क्या करता था जब किताब अभी मुसन्निफ ने ना लिखी हो। When he would hear of a book that was not yet written, he would send a handsome gift to the author and begged him to send the first copy। क्लियर, जब वो किसी किताब के बारे में सुनता तो फिर वो एक तोहफ़ा जो है वो इरसाल करता मुसन्निफ़ को और उससे गुजारिश करता कि वो पहली कॉपी उसको भिजवाए। नेक्स्ट, हाउ मैनी बुक्स हैड द सुल्तान गैदर्ड। ही हैड गैदर्ड अबाउट 4 lakhs बुक इन हिज लाइब्रेरी। क्लियर, तकरीबन 4 लाख किताबें। Why was it difficult to collect so many books in those days? The art of printing was unknown in those days, so each book was copied manually by the copyist। Clear? Manually, हाथ से। ठीक है, कॉपीस्ट जो है ना वो उसको कॉपी करता था। तो दैट्स वाई जो कलेक्शन ऑफ बुक्स जो था वो बहुत मुश्किल काम था एट दैट टाइम। ओके ना, दिस इज़ होमवर्क एंड डेली डायरी। I hope you will understand. I hope you have understand. Learn and write question and answer of this paragraph. Revise it and do practice of it at your home. Thank you so much. Best of luck.